Welcome to the part 2 of this video, the student of class 10. Before I start the lecture, I presume everybody is fit and fine, and please do not come out of your home until unless it is very necessary. So with this assumption, we may proceed with our lecture. In the previous lectures, we have discussed about the power sharing. We have discussed about the two cases. One is your Sri Lankan model and the other is your Belgian model. So just a brief description regarding these two cases, we'll see it today, and after that we'll see what are the consequences and how they have accommodated the differences in their countries. Okay. So in the previous class, what we have seen that the Belgium, which is one of the federal states of the Western Europe, has a different ethnic group. Previous we have discussed what is an ethnic. I told you there is a good definition given in your NCERT book. So what is an ethnic? A social division based on your shared culture. It is the people belonging to the same ethnic group who believes in the common descent because of the similarities of culture and the physical type or both. So this is the definition which has been given in your NCERT. You may learn it. ऐसे लोग, ऐसे बिरादरी के लोग जो कि एक जैसे हैं, वो एक कल्चर, एक डिसेंट मानते हैं, उनकी जो पूर्वज है वो एक है, तो उनको एथनिक ग्रुप कहा जाता है. तो यहाँ पर एथनिसिटी देखने को मिल रही है. देयर आर वर्सेटाइल ऑफ द पीपल्स, different peoples who have been resided in the different regions of the country. So we have seen that there were the two regions, one is your Wallonian and the other is your Flemish region. So and the percentage of the peoples living in these two regions were also different. For an example, in the Flemish regions we had about 59% of the people who spoke your 59% of the people who which language did they spoke? The 59% of the people, they spoke the Dutch language name. And then we are having the 40% of the people living in the Wallonian region, and these people spoke what? French. Okay. After that we are having a German speaking people with only 1%, and besides that we are having a capital city with a mixed ethnic group, that is your both Dutch as well as your French. Okay. In the capital city, what did we have? We are having 80% of the people who are speaking French, and then we are having a 20% of the people who are speaking Dutch. Okay. So what was the cause for the problem of in the Belgium? The cause was that the French people who got right from the time immemorial the various kinds of rights from their birth regarding the educations, regarding the social right, economic as well as political right. Now the same right needs to be given to the different ethnic groups. So they are fighting for their rights. So in order to avoid the civil war, so Belgium has amended 4 times its constitution. Okay, so there are certain steps taken by the Belgian model for power sharing, which helps it one of the innovative ideas given by the European countries, okay, for the rest of the countries. So let's see what are those innovative ideas which has been kept in the Belgian model. So the first one which it has written is that Constitution prescribes that the number of Dutch and the French speaking ministers shall be equal in the central government. Okay, so when संविधान में ये बात लिखी गई है कि चाहे वो डच बिरादरी के लोग हैं या फिर फ्रेंच बिरादरी के लोग हैं, the number of the people should be equal. जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो दोनों कम्युनिटीज में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए. ओके, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. सो पहली बात क्या हुई कि ये डिस्प्यूट सॉल्व हो गया. किसको कौन मेजॉरिटी और कौन माइनॉरिटी है, तो इस चीज को हटाने के लिए बेल्जियम मॉडल ने क्या किया, संविधान में ये बात लिखी गई कि जो भी कम्युनिटीज होंगे, चाहे वो डच है या फ्रेंच है, द नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स यहाँ पर क्या होगा? इक्वल. ओके.
सेकेंड स्टेप इस मॉडल में क्या लिया गया है कि जैसे कि बहुत सारे स्पेशल लॉ है ना, जो कुछ स्पेशल लॉ होते हैं, जैसे कि हमारे कंट्रीज में अगर हमें कोई स्पेशल लॉ पारित कराना है तो वी टेक द 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, इजंट इट? तो उसी तरह बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, ओके, फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। मतलब कोई एक मेजॉरिटी ग्रुप यूनिलैटरली कोई डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। अगर कोई स्पेशल लॉ पारित कराना है तो डिफरेंट कम्युनिटीज, आई मीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप ना, अपने जो डिसीजंस को हो वो बराबर ढंग से पास कराना होगा। So let's read once again. Special laws require the support of majority of members. ठीक है, इसमें बहुमत मिलनी चाहिए, लेकिन ये बहुमत सिर्फ एक ग्रुप की नहीं होनी चाहिए, फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, मतलब दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप, चाहे वो डच है या फ्रेंच है या फिर आपका जर्मन है। Thus no single community can make a decision unilaterally. एक कम्युनिटी इस डिसीजन को अपने पक्ष में नहीं ले सकता है या फिर यूनिलैटरली, मतलब एक माध्यम से नहीं ले सकता है। इसे अगर कभी भी डिसीजंस लेना पड़ा तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे तीनों कम्युनिटीज को साथ में रख के ना यूनिलैटरली लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई विवाद नहीं होगा, किसी को ये नहीं लगेगा कि हमें पूछा नहीं गया है। तो तीनों कम्युनिटीज की इसमें बात लेने वाली बात हो गई। अब थर्ड में क्या लिखा गया है, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारे पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है। जैसे कि अब हम जानते हैं ना कि हमारे भी देश में नेशनल लेवल है, स्टेट लेवल है, तो और लोकल लेवल है, तो बहुत सारी चीज़, इतनी बड़ी चीज़ को हैंडल करना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के लिए बहुत इम्पॉसिबल है। इसीलिए हर जगह पावर को शेयर किया जाता है ताकि हर एक रीजन अच्छी तरह से गवर्न किया जाए, है ना। तो यहाँ पर भी ये चीज़ किया गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करने की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के अधीन नहीं है। दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। हम लोग क्या है, हमारी कंट्री में जो जिस तरह का सिस्टम है, तो हम लोग अधीन है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के ना। तो हमारा जो फेडरल फीचर्स है यहाँ पर थोड़ा सा धारण हो जाता है, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट पावर नहीं दी जाती है, जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं है। Many powers of the central government, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। जैसे कि हम लोग देते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में। यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में प्लान्स बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में प्लान बनाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर दिया गया है ऑफ द 2 रीजन्स, मतलब मेलोनियन और फ्लेमिश रीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, और यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के क्या सबऑर्डिनेट नहीं है। ओके, चौथा चीज इसमें क्या चीज डाला गया है कि ब्रुसेल हैज द सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। अब जहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ पे आपने ब्रुसेल में क्या देखा कि ब्रुसेल में हम लोगों ने पिछले बार क्या देखा कि बिल्कुल विपरीत है कंट्री से। कंट्री में किसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, कंट्री में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसकी है, डच की। और ब्रुसेल में क्या है, डच की पॉपुलेशन कितनी है, रिलेटिवली लेस, दैट इज 20%। और कंट्री में फ्रेंच की पॉपुलेशन क्या है, 40%, मतलब कम है, जबकि कैपिटल सिटी में इसकी पॉपुलेशन अधिक है, दैट इज 80%, है ना। लेकिन इसके बावजूद देयर इज सच एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज एंड द डिफरेंट रीजन्स दैट दे हैव एक्सेप्टेड what equal representation in the
capital city. So isn't it having some innovative ideas? So इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चीज़ को बहुत एक्सेप्शनली लिया और ब्रुसेल को एक्सेप्शनली डिफरेंट गवर्नमेंट सिस्टम के अंतर्गत रखा गया, where both the linguistic group is having an equal representation. Okay, कितने परसेंटेज में बटे हुए हैं कंट्री में या स्टेट में इससे मायने नहीं है, लेकिन दोनों को एग्जैक्टली इक्वल रिप्रेजेंटेशन 50-50 का दिया गया. ओके, तो कोई ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ, लोगों ने इसलिए भी एक्सेप्ट किया क्योंकि द डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में, बिकॉज द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड द रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल. तो दोनों ने कुछ ना कुछ खोया और कुछ कुछ पाया ना. तो इससे क्या हो गया, दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट हो गई. और चौथी और अंतिम जो उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया वो है क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट. जैसे कि हमारा लोकल लेवल में एक गवर्नमेंट हम लोग बनाते हैं, लोकल लेवल में अगर रूरल एरियाज में हम लोग को गवर्न करना है, देन वी आर यूजिंग आवर पंचायती राज सिस्टम, एंड इफ इट इज़ एन अर्बन एरिया देन वी आर डूइंग अ म्यूनिसिपैलिटी ना. तो इस तरह से इनका भी एक गवर्नमेंट इन्होंने लोकल ऑर्डर्स में बनाया है जिसका नाम उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट दिया गया है. ठीक है, तो apart from the state government and the central government, the Belgium is having a third kind of a government which is known as the community government. Okay, तो इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या है, तो दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एसोसिएटेड विद वन लैंग्वेज कम्युनिटी. ठीक है, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के मेंबर्स कौन होंगे, तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट के मेंबर्स वही 3 लिंग्विस्टिक ग्रुप होंगे जो कि हमारे बेल्जियम में मौजूद है. यस, एग्जैक्टली, दैट इज योर फ्रेंच, then the second is your Dutch and the third is your German. ये तीनों लोग इसके मेंबर्स बनेंगे. अब ये काम क्या करेंगे, तो इसका जो इश्यूज है, दिस गवर्नमेंट हैज अ पावर रिगार्डिंग द एजुकेशनल, रिगार्डिंग द कल्चर, रिगार्डिंग द लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज एंड टास्क. ठीक है, तो ये अपने अपने रीजन्स में इस तरह के काम कर सकते हैं. तो क्या हुआ, तो बहुत सारी परेशानी सॉल्व कर दिया लोकल लेवल पे ना. तो दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एसोसिएटेड विद वन लैंग्वेज कम्युनिटी, आइदर फ्रेंच, डच और जर्मन, नो मैटर वेयर दे लिव, कहीं पे भी वो लोग रहे, लेकिन अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट के आधार पे वो अपनी जो भी लोकल नीड्स है उसको वो लोग अच्छी तरह से डील कर सकते विदाउट इंटरफेयरिंग इन द अदर कम्युनिटीज. तो अपने कम्युनिटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, देश टूटा भी नहीं और सिविल वॉर हुआ भी नहीं. तो ये सारा चीज़ जो बेल्जियम लेके आया था ये बहुत अद्भुत था, इट वॉज वेरी इनोवेटिव, लोगों ने पसंद किया. ओके, तो ये देखने में बहुत जटिल हो सकता है, इट मे बी वेरी कॉम्प्लेक्स ना, यहाँ की लोगों के लिए भी कॉम्प्लेक्स था, लेकिन जब इसने वर्कआउट किया, आई मीन जब ये प्रोसेस ने वर्कआउट किया, इट वॉज जस्ट एक्सेप्शनल ना. जैसे कि इसने 2-3 चीज़ ओमिट कर दिया, जैसे कि you may find that the Belgian model very complicated. It is really very complicated even for the people living in the country that is your Belgium. अभी जैसे कि मैंने बताया, but these arrangements have worked very well so far. जैसे कि क्या क्या changes लाया है ना, the changes which they brought was number 1, that they have avoided the civic strife between the 2 major communities, that is your French and your Dutch. जिस एजिटेशन से लोग एक दूसरे को देख रहे थे, तो ये चीज़ को लोगों के अंदर जो आक्रोश था इसको दूर कर दिया. ओके, तो लोग अब एक दूसरे से शेयर करना सीख गए, न कि एक दूसरे के प्रति उनका आक्रोश रहा. नेक्स्ट क्या है, बिटवीन द 2 मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ अ नेशन ऑन द लिंग्विस्टिक कन्फ्लिक्शन. जैसे कि हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन हमारा डिवीजन हुआ 1947 में, इस्लामिक स्टेट दैट इज योर पाकिस्तान एंड योर हिंदूज एंड योर इंडिया विच इज ए सेकुलर स्टेट. तो हुआ ऐसे डिवीजन, तो यहाँ ऐसा डिवीजन इस मॉडल के कारण नहीं हुआ. लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पे अपने देश को तोड़े नहीं और अपने विभिन्नता को एकोमोडेट किए वेरी लॉजिकली और अंडरस्टैंडिंग के द्वारा. सो व्हेन सेवरल कंट्रीज ऑफ द यूरोप केम टुगेदर टू मेक यूरोपियन यूनियन, जब बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज आए एक
ऑर्गेनाइजेशन बनाने का यूरोपियन यूनियन का, तो ब्रुसेल को एक मॉडल लिया गया एज अ ब्रुसेल वॉज टेकन एंड एज सेलेक्टेड एज द हेडक्वार्टर. क्यों? Very obvious, because of its innovative ideas which it has kept in its constitution. And for how many times it has amended this constitution इस तरह का मॉडल लाने के लिए? Yes, definitely it has amended 4 times. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग अपने नज़र को देखेंगे किसकी तरफ? श्रीलंकन मॉडल की तरफ. तो श्रीलंकन मॉडल में क्या इसी तरह का चेंजेस आया जो कि पीपल ने एक्सेप्ट किया? क्या इसी तरह की पॉजिटिवनेस देखने को मिली पीपल्स के बीच में, एथनिक ग्रुप्स के बीच में? ये हम लोग अब जस्ट थोड़ी ही देर में देखेंगे. So in the Sri Lankan model, what we'll get to see, let's see on the wall. So as we all know that Sri Lanka is an island country. Now it is an island country in our Indian Ocean. It lies in the Indian Ocean. And the ethnic composition of the Sri Lanka is also very complex as your Belgium. Okay. So we are having two different group of people here. One is your Sinhalas and the other is your Tamilians. Okay. So the Sinhalas, they contribute about 74% here, and the Tamilians are your 18%. The rest is 7%. It belongs from the other community. Okay. So now this 74% of Sinhalas, they basically follow two religions which we have discussed in the previous lecture. One is a Christian and the other is your Buddhist. Whereas the Tamils, which is divided yet again into 2 parts, one is your Indian Tamils and the other is your native. So the Indian Tamils, they make up 5%, whereas your native makes up 13%. Okay, so altogether there are 18%. So what is the language which they follow? So that is a Christian, Hindu and Muslim. Okay, so we are having these kind of the languages which is being followed by the different communities. Okay, now as we know that the percentage is high of Sinhalas here. So during an election, it is obvious that the Sinhala will become a majority party here because they are contributing 74% of the population here. So majoritarianism of the power sharing we'll discuss in the Sri Lankan model. Okay, here we'll see that how the concept of majority has come and how the constitution was amended, keeping this in the mind. So the first thing which was amended in Sri Lanka was in 1948 Sri Lanka emerged as an independent nation. So it was only in 1948 when Sri Lanka was an independent nation. Okay, and in this election the Sinhala community had formed a government, and this government was formed and sought to secure a dominance over government by virtue of their majority. As we have already discussed before, that 74% of the population is the Sinhala, so that is very obvious that being the largest population in the country will make them one of the winning parties. So the third thing, what is that? The official language is chosen as Sinhala by an act in 1956. So this was the amendment, first amendment which was made, that they have accepted the Sinhala language as the official language. They have not thought about the Tamilians and what is the other grievances what they are having. They have not thought regarding this, and they have amended the Sinhala as to be the official language. Then the fourth thing is what here. I mean the second thing what is here. The democratically elected government adopted a series of majoritarianism measures to set up the Sinhala supremacy. Like for an example, various laws was amended for which the Sinhala would be in the benefit side. Now, the government has also followed the preferential policy regarding giving a job to the Sinhalians or in giving a highest position in the university level. Okay, so all these were taken under their favor. It also stipulated Buddhism as the state religion. So this is the next amendment which they have made. They have made a common religion here, that is the Buddhism
was supposed to be the state religion of the Sri Lanka. So these changes slowly and steadily has brought agitations to the minds of the Tamilians. Okay, so all these government measures, now one after the another, increase the alienation gradually among the Sri Lankan Tamils. Now what will happen, इस तरह की changes अगर मिल रही है, सिर्फ एक ही बिरादरी के लोगों को देखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर जो दूसरी बिरादरी है वो इसका अपना आक्रोश तो दिखाएंगे। तो उन्होंने क्या दिखाया, तो आक्रोश आदमी दो ही तरह से दिखा सकता है, या फिर बातचीत करके बोल्स के अपनी ग्रीवियंसेस को बता सकता है, या फिर विद्रोह करके। तो इन्होंने क्या किया, दे फेल्ट दैट नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हालास लीडर वेर सेंसिटिव टू देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। उनको ऐसा लगा कि उनके फरियाद के बाद भी, उनके मांग के बाद भी इन लोगों के मांग को उन्होंने अहमियत नहीं दिया। किन की मांग, तमिल्स की मांगों को उन्होंने अहमियत नहीं दिया। किन्होंने नहीं दिया, द बुद्धिस्ट सिन्हालास लीडर, क्योंकि बुद्धिस्ट को भी एक रिलीजन का दर्जा मिल गया था श्रीलंका में, तो और जो भी लीडर्स थे वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे, तो उन्होंने इन लोगों का मांग को इनकार कर दिया। और लगातार इनकार करने के कारण क्या हुआ, लोग और भी इनके प्रति आक्रोश डेवलप किए। They also felt that the government policies and constitutions denied them equal and uniform political rights. इनको ऐसा लगा कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितनी भी एजेंडाज है, ये बेसिकली सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग के लिए है, और ये इसमें इक्वालिटी दिखती नहीं है ना, और यूनिफॉर्मनेस नहीं दिखती है। उनको ऐसा लगा उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है इन गिविंग द जॉब्स, इन गिविंग द अदर अपॉर्चुनिटीज, एंड ऑल्सो इग्नोर देयर इंटरेस्ट। तो ये सारा चीज़ लगातार हुआ जा रहा है, जिसके कारण तमिल्स और सिन्हाला कम्युनिटीज़ की जो रिलेशन हो वो दिन पर दिन बहुत स्ट्रेन होते गया ना। इट हैज़ स्ट्रेन ओवर टाइम, मतलब बहुत इनके बीच का जो दूरी है वो बढ़ते गए। और अल्टीमेटली द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड अ स्ट्रगल ना, एंड दे फॉर्म द पार्टीज ना, एंड टू उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी अभियान चलाए, उन्होंने पार्टीज फॉर्म किया, और उन्होंने डिमांड किया कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, और उनको भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए रिगार्डिंग द जॉब, एजुकेशनल या फिर रीजनल ऑटोनॉमी में। इन सभी का हक तमिलियंस को भी चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये लोग देंगे नहीं तो क्या होगा, निश्चित रूप से वॉर होना ही है। तो सिविल वॉर हैज़ टेकन प्लेस। ओके, तो हम लोगों ने देखा 1980 में उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड किया। उन्होंने डिमांड किया कि अब जब आप लोग राइट्स नहीं दे रहे हैं तो हमें हमारे स्टेट को अलग कर दीजिए। तो वहाँ पर उन्होंने सीवियर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वे क्रिएटेड, ओके, विच वेर डिमांडिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम, that is a state in eastern and northern parts of the Sri Lanka। तो 1980 में उन्होंने डिमांड किया कि हमें एक सेपरेट स्टेटहुड चाहिए इन द ईस्टर्न एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। ठीक है, और जब आपको डिमांड आपने किया और जब आपको नहीं मिलती है तो क्या होगा, आप उसके लिए रोड पर निकल आएंगे। वैसे ही हुआ, राइट। तो यहाँ पे द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटी रिजल्टेड इन द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड इट सून चेंज इनटू द सिविल वॉर। ठीक है, दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ी, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में हज़ारों आदमी मरे, इसमें ना बहुत सारे आपके कैजुअलिटीज़ भी हुए। तो मैनी फैमिलीज में प्रेशराइज, बहुत लोग को प्रेशराइज किया गया कि आप पलायन करें, यू हैव टू माइग्रेट टू योर ओन सिटी, ओन कंट्रीज। तो मैनी फैमिलीज वे प्रेशराइज टू लीव द नेशन एज रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड एंड एक्सप्लॉइटेड टू मच, और बहुत लोगों को शोषण भी किया गया। तो इस तरह से बहुत इसकी जो हिस्ट्री है श्रीलंकन की, दो अब पिछले साल हम लोग ने क्लास 9 में पढ़ा था कि इसकी ह्यूमन इंडेक्स बहुत अच्छी तरह से भरी है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम। लेकिन इस चीज़ ने श्रीलंका को बहुत पीछे ले गया। एंड श्रीलंकन एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन ना, ये रहने के बावजूद भी द सिविल वॉर हैज़ रिजल्टेड इन अ टेरिबल सेटबैक टू द कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द नेशन। ओके, तो इसके कारण बहुत पिछड़ गए। एंड द सिविल वॉर ये एंड कब हुआ, 2009 में।
ठीक है। तो 1980 से शुरुआत होकर 2009 में इसका समाप्ति हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि इस वॉर में कितना चीज़ श्रीलंका ने खोआ होगा, ठीक है। तो ये थी अलग अलग तरह से अपने डिफरेंसेस को डील किया गया है। एक बेल्जियन मॉडल में हम लोगों ने देखा, एंड देन सेकेंड वी हैव सीन इन द श्रीलंकन मॉडल। अगर अब हम दोनों मॉडल्स को कंपेयर करते हैं तो आपके जहन में क्या बात आती है? कौन सा मॉडल सबसे सक्सेसफुल होगा? राइट, इट इज़ योर बेल्जियन मॉडल। नहीं, तो बेल्जियन मॉडल बहुत इसीलिए भी सक्सेसफुल है क्योंकि इसने बहुत लॉजिकली अपने डिफरेंसेस को देखा। जैसे कि इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज, उनको ये पता चला कि यूनिटी ऑफ द नेशन इज पॉसिबल ओनली बाय केयरिंग द इंटरेस्ट एंड फीलिंग ऑफ द डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज। जब तक हम विभिन्नता को अपनाएंगे नहीं, लोगों को अपने अपने नीड से उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम एक कंप्लीट नेशन का गठन नहीं कर सकते। ये बात बेल्जियन वालों को पता था। सेकेंडली उन्होंने क्या सोचा? सच ए रियलाइजेशन, ऐसा जो रियलाइजेशन उनके प्रति, लोगों के प्रति हुआ, इट हैज़ रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर द शेयरिंग ऑफ पावर। क्योंकि ये सबकी विभिन्नता के बारे में जान गए, तो अब कैसे इसको सेटल करेंगे? तो इसको सेटल करने के लिए इन्होंने हर कम्युनिटीज़ को कुछ न कुछ पावर्स दिया, जो कि हम लोग ने अभी क्लास में डिस्कस की है इसके बारे में। और श्रीलंका ने इन कॉन्ट्रास्ट क्या किया? श्रीलंका ने अपने मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो वर्चस्व को दिखाया और अपने कम्युनिटी के बल पे चाहा कि अपने पावर को के माध्यम से वो सारे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यार के माध्यम से आप दुनिया को जीत सकते हैं, तो पावर के माध्यम से आप दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन कम समय के लिए, है कि नहीं? क्योंकि दुनिया में क्या है, चेंजेस तो लॉ ऑफ नेचर है और चेंजेस चाहिए ही। जब तक आप डेमोक्रेसी में पब्लिक के अनुकूल नहीं रहेंगे, तब तक आप सत्ता में बने हुए नहीं रह सकते। ओके, तो दिस इज व्हाट हैपेंड इन योर श्रीलंका, कि उन्हें ये रियलाइजेशन ही नहीं हुआ कि लोगों की नीड्स क्या है। इट रिप्रेजेंटेड अस दैट इफ majority community desires to force its dominance over others and refuse to power sharing, it can undermine the unity of the nation. इसमें ये चीज़ दिखाया गया, अगर आप जबरदस्ती किसी को अपने अधीन रखने की कोशिश करेंगे तो वो आगे जाके उस चीज़ का बड़ा रूप ले लेगा और हो सकता है कि आपके देश में, आपके कंट्री में विभाजन भी कर दे। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है पावर शेयरिंग, वाई पावर शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेमोक्रेसी। ओके, सो लेट अस सी वाई पावर शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो हमारे बोर्ड पे 2 रीज़न है इसके लिए। तो हम लोग ने ये लिखा है पावर शेयरिंग हमारे लिए इसीलिए डिजायरेबल है, तो हम लोग इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे ना। सो दीज 2 रीजंस आर प्रूडेंशियल रीजंस एंड वन इज योर मॉरल रीजन, ठीक है। तो ये दोनों रीजन क्या है, इसको देख लेंगे। तो प्रूडेंशियल रीजंस ये जो है, ये बताती है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जैसे कि रीजंस विच आर बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, कि क्या डेमोक्रेसी में पावर शेयर करना सही रहेगा या गलत रहेगा, ये हमें बताती है प्रूडेंशियल रीजन में। जैसे कि अगर हम बेल्जियम और श्रीलंका का केस लें, तो हम लोग क्या जानते हैं कि पावर शेयरिंग बेल्जियम के लिए बहुत सक्सेसफुल रहा, वेयरएज पावर ना शेयर करना अपने ही लोगों के बीच श्रीलंका के लिए क्या रहा, लॉस रहा। ओके, सो प्रूडेंशियल रीजन हमें प्रैक्टिकल बात बताती है दैट अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा है, और अगर नहीं करते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, अगर डेमोक्रेसी में हम पावर शेयर करते हैं तो क्या चीज़ से बच सकते हैं, ठीक है। इट इंश्योर्स इंस्टेबिलिटी, मतलब इट टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर हम पावर शेयर करेंगे तो लोग आपको बार बार चुन के भेजेंगे, और एक गवर्नमेंट जो कि सरकार को अच्छी तरह से 5 सालों में समझती है, तो नेक्स्ट 5 इयर्स वो उसके लिए और ज़्यादा काम कर सकती है। लेकिन ये कैसे तय होगा? तभी जब आप लोगों के हित के लिए डिसीजंस लेंगे और उसी के मुताबिक आप काम करेंगे।
तो अगर ये ऐसा होगा तो क्या होगा, ये स्टेबिलिटी बना के रखेगी, ठीक है ना। तो हर 5 years के बाद कोई गवर्नमेंट चेंज नहीं होगा। थर्ड क्या है, इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट। अपने ही लोगों के बीच में अगर पावर शेयरिंग हम करते हैं तो हम लड़ाई झगड़ा से बचते हैं। ओके, सो वी can omit, it is, we know that fighting within our country with our own citizens is a big hindrance in the growth of a development in the economic sector of our country. Okay, so in order to avoid this, what we have to do, we have to share the power among the citizens and among the different levels of the government. And the fourth one is what, it provides equality whether they are in majority or minority. जैसे कि हम लोग ने देखा डच और फ्रेंच को, तो एक जगह पे एक कम्युनिटी, जैसे कि आपके सिटी में ब्रुसेल में अगर वो मेजॉरिटी में है तो वही कम्युनिटी आपकी कंट्री में क्या है, माइनॉरिटी। उसी तरह से हमारे श्रीलंका में सिंहालास जो मेजॉरिटी में है, तमिल्स मिनॉरिटी में है, लेकिन एक जगह लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं, और दूसरी जगह लोगों ने कोऑपरेट किया अपने डिफरेंसेस को और अपनी जो परसेंटेज के हिसाब से जो बटे हुए थे उसको एकोमोडेट किया बाय शेयरिंग द पावर्स बोथ इन द कैपिटल सिटी एज वेल एज इन द कंट्री। नहीं, तो इस तरह से फ्लेमिश और बेरोनियन में शांति बरकरार रही, लोगों के बीच में इक्वालिटी रहा। ये मैंने नहीं था कि कौन मेजॉरिटी में है या फिर कौन माइनॉरिटी में है, जिसके कारण देयर वाज अ वेरी डिजायरेबल स्टेप टेकन बाय द बेल्जियन मॉडल। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या देखा, दैट prudential reason basically it is based on the logical thinking. Okay, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, पावर शेयरिंग कराया जाता है और इसके कारण हम ये सारी चीज़ को पा सकते हैं। मॉरल रीजंस क्या कहती है, that it enhances the spirit of democracy. Moral reason is one of the deeper concept of the democracy. ये बताया जाता है moral reason में that why the power is becoming very important to be shared. Okay, it is a deeper reason why sharing of power is good for the democracy. क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में सभी लोग अपने गवर्नमेंट के प्रति उत्सुक रहते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने गवर्नमेंट को चुनने में बराबर का हकदार रखें। तो शेयरिंग ऑफ पावर इज द वेरी स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न सेंस। ठीक है, A democratic rule comprising sharing of power with those affected by its exercise. तो कहने का मतलब ये है कि किस तरह से पता चलेगा, जब ये आम लोगों के प्रति ये जाएगा और आपकी लेजिटिमेसी के ऊपर कोई सवाल नहीं होगा। अगर उनके मन के मुताबिक चेंजेस आए, उन्होंने एक्सेप्ट किया तो आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो जब वो एक्सेप्ट करेंगे और आपको वोट करेंगे तो समझिए कि ये मॉरल रीज़न है जो कि आपने सक्सेसफुली पाया है। ओके, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, शेयरिंग ऑफ द पावर्स। तो अ डेमोक्रेटिक रूल कंप्राइजेज शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। तो जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उसे खुश रहना चाहिए। पीपल शुड हैव द राइट टू बी कंसल्टेड एंड हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों के साथ तालमेल बना के उनको किस तरह से गवर्न करना है, ये सारी बात मॉरल रीजंस बताती हैं। सो अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम थ्रू पार्टिसिपेशन। तो एक ऐसा डेमोक्रेसी, एक ऐसा लेजिटिमेट गवर्नमेंट बन सकता है जहाँ पे वहाँ आम आदमी को उसी तरह से पूछा जाए जिस तरह से लोग अपने विश और डिज़ायर के लिए लड़ते हैं ना, उसी तरह से हर लोगों को अपना के और उनकी ग्रीवियंसेस को, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये दो रीज़न के माध्यम से हम ये जान सके हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये है प्रूडेंशियल
प्रूडेंशियल रीजन रहे, एक आपका मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन ये बताता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो देयर इज अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इट अवॉइड्स द कॉन्फ्लिक्ट, इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी नो मैटर यू आर इन द मेजॉरिटी और द माइनॉरिटी। ये आपको लॉजिकल थिंकिंग के लिए मजबूर कर देता है कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो लोगों में क्योस नहीं होगा। मॉरल रीजन ऑन दी अदर हैंड ये आपको बताती है, एक तरह का मिरर है, ये आपको शो करती है कि आपकी जो थ्योरीज है ये प्रैक्टिकल रूप में अगर जब आती हैं तो लोगों के प्रति खुशी होनी चाहिए, आभार होनी चाहिए और आपको समर्थन होनी चाहिए। तो ये मॉरल रीजन तय करती है और ये तभी होगा जब पावर शेयरिंग डिजायरेबल वे में शेयर होगा हर एक शोल्डर के ऊपर। Okay, so I presume this lecture is being in a simple form for you to understand it, and if you are having any problems regarding any concept here, then you may call me up or you can put the questions in the WhatsApp group so that I may answer you all. In the next and the final video, we will discuss about the parts and the different types of the government. Okay, so that will be the final video, and with that I'll end up the class here and wish you a very good luck and for your exams coming forward, and study very hard and go through your internal questions as well as the questions which has been given in your NCERT, and best of luck. Thank you.